Good morning students. Welcome to all of you. This class is especially for 9th class students. Today we will study poetry section of English Beehive. Chapter 1 The Road Not Taken, composed by Robert Frost. The road not taken means वो रास्ता जो नहीं लिया गया या जिस पर नहीं चला गया. Before starting the poem, let us have some knowledge about the poet. पोएम को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम कुछ बातें इसके पोएट के विषय में जान लेते हैं. स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि और नाटककार थे. He was born in San Francisco, California, US on 26 March 1874. उनका जन्म 26 मार्च सन 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था. He is known for his realistic depictions of rural life. वह अपने ग्रामीण जीवन के वर्णन के लिए जाने जाते हैं. He writes insightfully about common ordinary experiences. वह साधारण जीवन के अनुभवों को लिखने के लिए जाने जाते हैं. Robert Frost died in Boston on 29 January 1963. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु 29 जनवरी सन 1963 ईस्वी को बॉस्टन में हुई थी. Before starting the poem, let us know about the central idea of this poem. कविता को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम इसका केंद्रीय भाव जान लेते हैं. The road not taken has a symbolic meaning. बच्चों, ये पोयम द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं चुना गया या जिस पर नहीं चला गया, इसका अपना प्रतीकात्मक अर्थ है. हियर द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ. यहाँ पर सड़क का तात्पर्य मनुष्य के जीवन से है. When the road of life is divided in two, we find ourselves in dilemma. जब जीवन रूपी सड़क दो भागों में विभक्त हो जाती है, जहाँ पे हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, दो चॉइसेस होते हैं, उस समय हम अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाते हैं. We have to make a choice. और हमें एक निर्णय लेना होता है, एक रास्ते को चुनना होता है. The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure. जिस ऑप्शन या रास्ते को हम पसंद करते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है और वो हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. यह कविता उन विकल्पों, उन पसंदों के बारे में है जो हम जीवन में चुनते हैं और जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली but insightfully about common ordinary experiences. This poem is about the dilemma of human being. यह पोयम मनुष्य की असमंजस की स्थिति के बारे में है. जब मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प होते हैं, तो उसे कौन सा रास्ता चुनना है या कौन सा नहीं चुनना है, यह कविता उस बारे में है. Students, let us recite the poem first. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now I will explain the poem stanza by stanza. First stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverged.
Diverged means separated from another route and went in a different direction. अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए. Yellow wood means a wood with yellow dried leaves. सूखी पीली पत्तियों से भरा जंगल. Travel means यात्रा करना. Both means दोनों. Bent means मुड़ी हुई. Undergrowth means पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. एक बार सड़क पर चलते चलते कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में विभक्त होती थी. दो विभक्त सड़कें पीले वन, सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीले पड़े हुए वन में जा रही थीं. दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण कवि दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. बच्चों, आगे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा जहां दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी. अर्थात वह अनिश्चय की एवं दुविधा की स्थिति में था कि वह किस राह को चुने. Let us start the second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted fair, though as for that the passing there had won them really about the same. Fair means quite good, एकदम बढ़िया. Perhaps means possibly, maybe, शायद. A better claim means here a better option, श्रेष्ठतर विकल्प. Grassy means full of grass, unused, घास से भरी हुई, जिस पर कोई न चला हो, ऐसी सड़क. Then took the other just as fair and having perhaps a better claim. बच्चों, यहाँ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर देखते रहने के पश्चात तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो. Because it was grassy and wanted fair. इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी तथा इस पर कोई नहीं चला था. Though as for that passing there had won them really about the same. यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था. Let's start the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Both means दोनों. That morning उस सुबह equally lay समान रूप से फैली हुई थी. In leaves means पत्तियाँ, no step कदमों के निशान नहीं थे. Trodden means कुचली हुई. Another day अन्य दिन, कोई दूसरा दिन. Knowing means जानते हुए. Doubted means संदेह किया या शक किया. Come back means वापस आना. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. बच्चों, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उस सुबह दोनों मार्गों पर समान पत्तियां बिछी हुई थीं जो समान रूप से हरी थीं, और किन्हीं पद चिन्हों या पैर के निशान ने उन पर कोई काले निशान नहीं छोड़े थे. अर्थात ये वो रास्ता था जिस पे पहले कोई व्यक्ति नहीं चला था. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. फिर कवि ने निर्णय लिया कि अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, अर्थात इस ऑप्शन को किसी और दिन चुनूंगा, इस रास्ते पे किसी और दिन जाऊंगा. Yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. और यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूंगा. Let us start the fourth stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. With a sigh means taking deep breath, perhaps of relief. चैन की गहरी सांस लेकर. Ages and ages means
here a long period, लंबी अवधि, hence from now, here in future, भविष्य में, less traveled means traveled by a fewer people, जिस पर कम लोग चले हों. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Students, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में एक आह भरकर बता रहा हूँगा कि two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थीं, मिली थीं और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी और इसी ने सारा अंतर ला दिया. स्टूडेंट्स, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज मैंने लाइफ में वो रोड चूज़ किया जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, जो बहुत टफ, हार्ड एंड डिफ़िकल्टीज से भारी लग रही थी, जिसका अंत किसी को पता नहीं था. फिर भी मैंने वो टफ पाथ चुना एंड फाइनली इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. मतलब वो टफ पाथ लेने वाला जो मेरा डिसीज़न था, वही डिसीज़न लाइफ में सारी डिफरेंसेस, सारे अंतर लेकर आया है. आज मैं जहाँ हूँ अपने उसी डिसीज़न के कारण हूँ. पोएट कहते हैं कि मैंने लाइफ में जो रोड चूज़ किया, जो विकल्प, जो ऑप्शन चूज़ किए, उससे सारा डिफरेंस आया है. यहाँ पोएट हमें समझा रहे हैं कि लाइफ में कभी भी इजी पाथ नहीं चुनना चाहिए, आसान रास्ते पे नहीं जाना चाहिए. जहाँ हार्ड वर्क हो, जहाँ हार्ड वर्क की आवश्यकता हो, जहाँ स्ट्रगल की ज़रूरत पड़े, उस पाथ में ज़रूर एक बार चल कर देखना चाहिए. यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर. सक्सेस विल बी वेटिंग फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. थैंक यू.